Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic elastic and inelastic collision. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. A cell of mass small m moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. The first part having the mass m by 4 remains stationary. The velocity of the other cell will be. There are four options are given. The situation is like this one. There is a one cell having the mass of m, small m. Okay, this is the cell having the mass of small m. Now it is moving, this cell is moving with a velocity v. Okay, suddenly it breaks into two pieces. The first piece having the mass of m by 4, the second piece having the mass of remaining one. ओके सो यहाँ पे फर्स्ट पीस का जो भी मास दिया है उन्होंने इट इज इक्वल टू m बाय 4. तो रिमेनिंग इसका मास कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 3 बाय 4 m. ओके, क्योंकि मास यहाँ पे दोनों का मिलके ये मास होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा था जिसका मास था m विद अ वेलोसिटी v और सडनली उसके पाथ में क्या हुआ, उसका एक्सप्लोजन हुआ या दो पीसेस हो गए. जब दो पीसेस हो गए तो पहले पीस का मास उन्होंने दिया है m बाय 4 और ये जो भी पीस है ये स्टेबल है. ओके, इट बिकम अ स्टेबल. इसकी जो भी वेलोसिटी होगा आफ्टर स्प्लिटिंग इट बिकम अ 0. तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी v डैश. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे. ओके, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना था? इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बिफोर स्प्लिटिंग. जब वो स्प्लिट हुआ दो इस पार्ट्स में तो उस वक्त का मोमेंटम कितना होगा वो हम देखेंगे. सो मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम बनेगा 0. मास इनटू वेलोसिटी, सो 3 बाय 4 m इनटू v डैश. ओके, ये मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज द मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, before splitting the momentum and after splitting momentum of the system should be same, should be conserved. तो यहाँ पे सेम होना चाहिए. So therefore we here we can write mv is equals to momentum of the first piece plus momentum of the second piece is nothing but the 3 by 4 m into v dash. Okay, so here mm get cancelled and v dash it is equals to 4 by 3 into v, where v dash is nothing but the velocity of this second part. Okay, it is moving in the same direction as that of the motion of the first object, or v is nothing but the velocity of this body. Okay, so 3 by 4 v ये ऑप्शन होना चाहिए. तो D ऑप्शन करेक्ट है. Next one, a body of mass small m having an initial velocity v makes head-on collision with a stationary body of mass capital M. After the collision, the body of mass small m comes to rest and only the body having mass capital M moves. This will happen only when. ये कब होगा? Okay, so यहाँ पे situation कैसा है देख लीजिएगा. This is the body having the mass of small m. This is the body having the mass of capital M. Okay. So according to given information, this body having the mass of small m, it is in a motion with a velocity v. And initially, this body having the mass of capital M, it is at a rest position. ये कैसा है? Rest position पे है. Okay. अब रेस्ट पोजीशन पे है तो डेफिनेटली ये जो भी बॉडी है हैविंग द मास स्मॉल m ड्यूरिंग इट्स मोशन इट डेफिनेटली कोलाइड विद दिस वन. अब जब कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने के बाद उनका कहना है आफ्टर कोलिजन द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m कम टू रेस्ट, यानी ये बॉडी जो भी है ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा आफ्टर कोलिजन और ये बॉडी अब मोशन में आएगा. ओके,
come to rest and only the body having mass capital M moves. ये बॉडी मूव हो रहा है. अब यहाँ पे इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी था 0, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रहा है. ओके ये तभी पॉसिबल होता है, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सचेंज हो रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. ये तभी पॉसिबल होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स का मास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो इस के लिए हम जो भी फार्मूलाज यूज करते हैं जनरली, तो फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए. v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू होल ब्रैकेट को u1 रहेगा प्लस ट्वाइस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. सो ये जो भी फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे हम अगर दोनों का मास इक्वल करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटीज इंटरचेंज होगा. तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का मास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल मासेस m1 एंड m2, दोनों का मास इक्वल है, सिर्फ हम नाम m1 एंड m2 कंसिडर कर रहे हैं. मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ वेलोसिटीज +3 मीटर पर सेकेंड एंड -5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, कोलाइड इलास्टिकली. ओके, देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली. तो डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगे. अगर यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहे तो आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं. ओके, सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट दिस सिचुएशन इट इज लाइक दिस वन. दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास ऑफ m1, दिस इज द सेकंड बॉडी हैविंग द मास ऑफ m2. ओके, तो एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2. ओके, सो अब फर्स्ट बॉडी की जो भी वेलोसिटी था, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है +3 मीटर पर सेकंड -5 मीटर पर सेकंड, तो ये ऑब्जेक्ट मान के चलते इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड और ये ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है हम कंसिडर करेंगे -5 मीटर पर सेकंड. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अगर एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे. अगर ये एक्स एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं, सो फर्स्ट पार्टिकल ऑफ फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास ऑफ m1, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन, वेयर एज द सेकंड बॉडी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव x डायरेक्शन. ओके, अब यहाँ पे दोनों का कोलिजन होने के बाद, जब भी दोनों का कोलिजन होगा, दोनों का कोलिजन होने के बाद फर्स्ट बॉडी जो भी होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ओके, लेकिन उसकी वेलोसिटी अब क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी अब होना चाहिए वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो गए. ओके, तो फर्स्ट बॉडी इस साइड आ जाएगा, सेकंड बॉडी इस डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके, अब वेलोसिटी से एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 3 मीटर पर सेकंड. ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके ऊपर देखते हो तो ये इस डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस आएगा. और इसका डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव आएगा. सो -5 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड, दिस शुड बी द आंसर. द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal ball falls from a height of 32 meter on a steel plate. If the coefficient of restitution is 0.5, to what height will the ball rise after second bounce? बढ़िया क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए, एक मेटल बॉल कंसिडर कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस वन. ओके, इसको हम 32 मीटर इतने हाइट से नीचे छोड़ रहे हैं. ओके, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट इज अराउंड 32 मीटर. कितना है, 32 मीटर, 32 मीटर. ओके, 32 मीटर. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ग्राउंड सरफेस तक का. अब जैसे इसको आप यहाँ से छोड़ेंगे, ड्रॉप कर रहे हैं, तो potential energy get converted into the kinetic energy and it is moving in this direction. जब ये कोलाइड होगा यहाँ पे इसके साथ, सो उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त यहाँ पे कोलिजन की वजह से
इसको रिबाउंड, इस बॉल का रिबाउंड हो रहा है, और इस प्रोसेस में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू कितना है 0.5, यानी स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, इट इज इक्वल टू स्मॉल ई इज इक्वल टू 0.5, और साथ ही साथ h की वैल्यू दिया है, h इज इक्वल टू 32 मीटर। ओके, जिस हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं वो। अब वो जैसे रिबाउंड होगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होता तो ये 100% इलास्टिक कोलिजन होता, यहाँ पे कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट पूरा वहीं पे आ जाता था, यानी जहाँ से हमने ड्रॉप किया वहाँ तक वापस आ जाता था। ओके, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 नहीं है, वहाँ पे 0.5 है, तो इसकी वजह से जब वो रिबाउंड होगा तो उसका हाइट एज कम्पेयर टू दिस वन कम होगा, जो भी हाइट ये राइज होगा मे भी यहाँ तक राइज कर सकता है। ओके, उसके बाद और नीचे आ रहा है, उसके बाद और रिबाउंड होगा। सो सेकंड रिबाउंड के वक्त, ओके, सेकंड बाउंस जब हो रहा है उसका, तो कितना हाइट राइज करेगा। सो व्हाट हाइट विल द बॉल राइज आफ्टर सेकंड बाउंस, ये है क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला है। वी हैव वन फार्मूला which we already seen in theory, so that formula is nothing but the h suffix n, it is equals to h into e to the power twice n। ओके, सो मैं यहाँ पे फास्ट में बताता हूँ कि what is the hn, it is nothing but the height of that ball rise। ओके, जो भी हाइट वो राइज कर रहा है, हाइट राइज बाय द बॉल ड्यूरिंग nth रिबाउंड। ओके, ड्यूरिंग nth रिबाउंड, और h इज नथिंग बट द हाइट जहाँ से हम उसको इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं, e इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो हमें सेकंड रिबाउंस के वक्त देखना है, हमें सेकंड बाउंस के वक्त देखना है कि कितना हाइट वो राइज करेगा। तो यहाँ पे h2 इट इज इक्वल्स टू h इंटू e टू द पावर यहाँ पे 2n, यानी 2n यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, सो h की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल्स टू 32, और e की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल टू 0.5। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और उसका पावर कितना है यहाँ पे 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 16, इट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके, सो यहाँ पे कितना रिबाउंड होगा, सॉरी कितना हाइट राइज करेगा आफ्टर सेकंड रिबाउंड, द आंसर इज दैट 2 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। Okay, so h suffix n is equals to h into e to the power twice n. So where n represent number of rebounds, okay, or e represent, it is the coefficient of restitution, h represent the height from where it drop. Okay, so always remember this formula. Next one. A ball of mass 10 kg moving with a velocity of 10 meter per second. It strikes another ball of mass 5 kg which is moving in the same direction with a velocity of 4 meter per second. If the collision is elastic, their velocities after the collision will be respectively. Okay, so यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, दो बॉडीज को कंसिडर करेंगे, लाइक दिस वन, दिस इज द फर्स्ट बॉडी, दिस वन इज द सेकंड वन। ओके, फर्स्ट बॉडी का मास कितना दिया है उन्होंने 10 kg, और सेकंड बॉडी का कितना दिया है 5 kg। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितना है, इट इज इक्वल टू 10, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितना है, इट इज इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ पे कहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सो 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अब हम इनके जो भी इनिशियल नेम्स है वो दे देते हैं। दिस वन इज द m1 विच इज इक्वल टू 10, दिस इज द u1 विच इज इक्वल टू 10, दिस वन इज द m2 हैविंग द वैल्यू 5। ओके, दिस इज नथिंग बट द u2 इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ओके, सो जब इन दोनों का कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद इस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगा हम इस डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। सो v1, और इसका जो भी वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन, लेट अस इमेजिन दैट इट इज अ v2। अब यहाँ पे डायरेक्शन भले ही मैं v1 इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इस डायरेक्शन में हो सकता है।
ओके तो अगर इसकी वैल्यू v1 वैल्यू जब पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर इन केस किसी कारणवश इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव होगा यानी कोलिजन के बाद। ये तभी पॉसिबल है जब इसका मास कम हो और इसका मास ज़्यादा हो। लेकिन इस एग्जाम्पल में v1 का जो भी डायरेक्शन होगा इट शुड बी लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में रहेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके अब v1 और v2 in terms of this given parameter we have that formulas. The formula is nothing but the v1 it is equals to m1 minus m2 upon m1 plus m2 ये जनरल फॉर्मूला है into u1 प्लस सेकंड इसका फॉर्मूला क्या है ट्वाइस सेकंड टर्म का ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 ओके अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 5, सो 10 माइनस 5 अपॉन कितना होना चाहिए 15, 10 प्लस 5 15 इनटू ये कितना आएगा u1 की वैल्यू कितना है 10 ओके प्लस u1 की वैल्यू 10 है 10 प्लस ओके ट्वाइस m2 की वैल्यू कितना है 5 है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम 10 अपॉन m1 प्लस m2 अगेन 15 मल्टीप्लाइड बाय u2 की वैल्यू कितना है 4 ओके इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगा 3.333 रिकरिंग प्लस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इट बिकम 2.666 रिकरिंग ओके सो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ऐड करने के बाद ये वैल्यू आएगा इट इज अराउंड 6 ओके 6 ये वैल्यू आएगा इसका v1 का। अब हमें फाइंड आउट करना है v2 सो v2 इट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इट इज इक्वल्स टू ओके m2 की वैल्यू है 10 m2 की वैल्यू है 5 m1 की वैल्यू है 10 सो माइनस 5 बाई 15 आएगा माइनस 5 बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय u2 की वैल्यू है 4 प्लस ये वैल्यू कितना आना चाहिए इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10 ये होगा 200 अपॉन 15 सो जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा माइनस 1.333 प्लस ये वैल्यू जो भी है इट बिकम 13.333 लाइक दिस वन। सो जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड ये 6 मीटर पर सेकंड ये आ रहा था पहला वाला v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू कितना आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड। अब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन आल्सो बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मूव होंगे जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव हो रहे थे ओके सो ये है सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next question, a ball is dropped from a height h. If the coefficient of restitution be e, then to what height will it rise after jumping twice from the ground surface? There are 4 options are given. We just solve same type of problem. Okay, so we have that formula that is nothing but the h suffix n. It is e equals to h into e to the power twice of n. Now what n represent? It is the number of rebound. Okay, so after second rebound here they ask jumping twice from the ground. Twice means 2 बार वो rebound हो रहा है ओके तो जैसे हमने ड्रॉप किया फर्स्ट बाउंड रिबाउंड हुआ और ऊपर गया कुछ हाइट तक उसके बाद और नीचे आ रहा है और रिबाउंड हो रहा है तो वो ग्राउंड सरफेस से कितने बार जंप किया उसने ट्वाइस okay so therefore in this case n is equals to 2
ओके, जिस हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे थे वो हाइट हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे दिया है h, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज आल्सो गिवन, इट इज इक्वल्स टू e. Okay, so therefore here h2 it is equals to h into e to the power 2 into 2, it is e equals to h into e to the power 4. Okay, so option D option is correct one. Next question, a ball of mass m falls vertically to the ground from a height h1 and rebound to a height h2. The change in momentum of the ball on striking the ground is. There are 4 options are given. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is the ball. This one is a ground surface. Okay, इस बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं. कितने हाइट से? द आंसर इज दैट h1 इतना हाइट. ओके, h1 इतना हाइट यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से लेके ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ तक. ओके, वो रिबाउंड होगा. रिबाउंड होने के बाद ओके, वो कहाँ तक जा रहा है? मान के चले रिबाउंड होने के बाद वो यहाँ तक आ रहा है. सो आफ्टर रिबाउंडिंग h1 इतने हाइट से छोड़ने के बाद वो नीचे आ रहा है. नीचे आने के बाद कोलाइड होने के बाद वो रिबाउंड हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है बाद में. ओके, अब ये जो भी हाइट है रिबाउंड होने के बाद की, लेट अस इमेजिन दैट दिस हाइट इज नथिंग बट द h2. ओके, सो यहाँ पे 2 डिफरेंट केसेस को हम कंसिडर करके चलते हैं. फर्स्ट केस, रिबाउंड होने से पहले उसकी जर्नी. सेकंड केस, रिबाउंड होने के बाद उसकी जर्नी. ओके, तो फर्स्ट केस में व्हाट is the initial velocity? We just drop it, therefore its initial velocity become a 0. Okay, now here it comes due to the gravity, therefore its acceleration takes place which is equals to the g. Okay, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? h1. लेट अस इमेजिन दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज द v1. ये फर्स्ट केस के लिए कुछ पैरामीटर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जैसे हमने इसको यहाँ से छोड़ा है तो ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और पूरे उसकी जर्नी में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? g. कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? h1. और फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना होगा? v1. ओके, सो इनके हिसाब से अब यहाँ पे हम h1 की वैल्यू लिख सकते हैं या v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो फॉर दिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. इस इक्वेशन को हमें यूज करना है. ओके, v स्क्वायर दैट इज द v1 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है, सो 0 प्लस 0 स्क्वायर लिख सकते हो, लिखना हो तो, प्लस ट्वाइस as 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? g है और s h1. सो अल्टीमेटली यहाँ पे v1 की वैल्यू कितना आएगा? सो v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस g h1. ओके, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस g h1. ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड केस में जब वो रिबाउंड हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना कंसिडर करेंगे? v2 इज अ इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू 0 होगा. ओके, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए माइनस g लिखूंगा मैं. और उसके बाद हाइट कितना ट्रैवल कर रहा है? वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? h2. तो इस स्लॉट के लिए, इस सेकंड केस के लिए अगर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है? v. सो इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, जनरल फॉर्मूला. सो 0 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ट्वाइस g h2 आएगा.
सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टॉइस gh2, ये होगा वेलोसिटी। लेकिन ये जो भी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, अभी तो ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, लेकिन ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइनल चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, पी फाइनल कितना है, सो यहाँ पे अगर हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, सो इट इज इक्वल्स टू m इंटू v2। ओके, अगर इसको पॉजिटिव कंसिडर करें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो m v2 माइनस इंटू माइनस m v1, इट इज इक्वल्स टू m v2 प्लस m v1। m को कॉमन निकाल लिया और v2 का वैल्यू कितना है, सो v2 की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस gh2 प्लस अंडर रूट ऑफ टॉइस gh1। सो अंडर रूट ऑफ टॉइस gh2 प्लस अंडर रूट ऑफ टॉइस gh1। ओके, इसको इंटरचेंज कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। मेरे हिसाब से आंसर जो भी है यहाँ पे इट शुड बी इक्वल्स टू बी। ओके, m इंटू अंडर रूट ऑफ टॉइस gh1 प्लस अंडर रूट ऑफ टॉइस gh2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल हिट अ वर्टिकल बॉल horizontally at 10 meter per second, bounce back at 10 meter per second. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is a ball. This one is that ball. Now horizontally ये जो भी बॉल है ये मूव हो रहा है with a velocity of 10 meter per second. Okay, ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये वापस आ रहा है with the same velocity 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपने अगर देखा होगा इनिशियल इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था और उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का मास सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और साथ साथ मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को हम डबल से पढ़ते हैं और उसके ऑप्शंस को देखते हैं। अ बॉल हिट्स अ वर्टिकल बॉल हॉरिजॉन्टली at 10 meter per second, bounce back at 10 meter per second. Okay, first there is no acceleration because 10 meter per second minus 10 meter per second become a 0. ओके, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमें चेंज अगर निकालना है, मोमेंटम चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो दोनों ऐड होते हैं, यानी टोटल मोमेंटम चेंज कितना होगा इसमें, ट्वाइस एम वी। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड वन, देयर मे बी एन एक्सेलरेशन बिकॉज इट्स इनिशियल डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। देयर मे बी एन एक्सेलरेशन बिकॉज इट्स इनिशियल डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल, नहीं। देयर इज एन एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। ओके, ये ऑप्शन 100% होगा क्योंकि देखिए देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, द आंसर इज दैट यस। कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर हम उसका मास कंसिडर करते हैं एम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं वी, तो जब वो चेंज होगा कोलाइड होने के बाद ओके रिजिड वॉल को, तो चेंज इन मोमेंटम जो भी हो रहा है इस केस में इट शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस एम वी। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ट्वाइस एम वी, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है और मोमेंटम चेंज होने के लिए वहाँ पे टाइम भी लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ओके, तो फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लिखते हैं dp बाय dt। ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स।
अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब जब जिस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट होगा तब तब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। इवन दो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, हेंस इट इज एन एक्सेलरेशन। इवन दो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, ये भी ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलास्टिक कोलिजन of two particles the following is conserved. First option is momentum of each particle, second option is speed of each particle, third one is nothing but the kinetic energy of each particle, the last one is nothing but the total kinetic energy of the both the particles. Okay, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो जब भी कॉन्जर्व होता है ना तो वो सिस्टम का होता है, इंडिविजुअल का नहीं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिविजुअल का ना तो मोमेंटम कॉन्जर्व होगा, इंडिविजुअल का ना तो एनर्जी का कॉन्जर्व होगा। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो भी है ये इंडिविजुअल रिलेटेड है। ओके, पूरा सिस्टम नहीं। सिस्टम अगर दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स का अगर कोलिजन हो रहा है तो हमारा सिस्टम होगा दो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कॉन्जर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व होगा। In case of inelastic collision, only momentum will be conserved. Okay, but here the momentum of each particle it is not conserved. Okay, किसी भी केस में momentum of each particle, क्योंकि इंडिविजुअल इसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम का होता है और सिस्टम में अगर दो पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है तो दो पार्टिकल्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन डी कैसा है? करेक्ट है इसमें। Next question, a gun fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 30 meter per second. Because of this, the gun is pushed back with a velocity of 1 meter per second. The mass of the gun is, okay, so यहाँ पे दो objects है. First one is a gun, second one is a bullet. Okay, so यहाँ पे इस प्रोसेस में मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन होने वाला है। ओके, हम कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही फॉर्मूला यूज करने वाला है। सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट mg इज अ मास ऑफ द गन, mb इज अ मास ऑफ द बुलेट, vg इज अ वेलोसिटी ऑफ द गन, vb इज अ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन, सो mg into vg it is equals to mb into vb. We have to find out the mass of the gun, so therefore mass of the gun it is equals to mb vb upon vg. Okay, substitute all values here. mb की वैल्यू कितना है? That is nothing but the mass of the bullet. Mass of the bullet it is equals to 50 gram. Okay, 50 ग्राम है। सो इसको हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओके, एसआई सिस्टम में केजी में। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इट इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, एसआई सिस्टम में है। वेलोसिटी ऑफ द गन इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, 1.5 kg आना चाहिए ये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 1500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो 1.5 होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज अ C1। करेक्ट आंसर जो भी है सी ऑप्शन है, 1.5 kg। ओके बच्चों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।